students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is giving life to the presentation. Previous classes में हमने जाना था कि presentation बनती कैसे है. इसके लिए हम एक प्रोग्राम जो होता है presentation वाला PPT बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं और आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. Things to learn: animating slide objects, slide transitions, inserting audio clips, inserting video clips, creating a photo album, rehearsing the slide show. Adya, Robo, I want to make a PowerPoint presentation on the topic Animal Kingdom. My teacher said to add audio and video to the presentation. आदिया को एक प्रेजेंटेशन बनानी है एनिमल किंगडम के ऊपर और वो चाहती है कि वो अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो भी ऐड करे. तो रोबो कहता है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम आदिया बट रोबो आई डोंट नो हाउ टू ऐड ऑडियो एंड वीडियो इन अ प्रेजेंटेशन, प्लीज हेल्प मी. लेकिन आदिया को नहीं पता कि उसे ऑडियो वीडियो कैसे डालने हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. Robo, I will explain you and I will also explain some other features of PowerPoint such as animation and transition effects etc. तो इन्हीं effects के बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. PowerPoint 2016 is a visual and graphical application primarily used for creating presentations. With PowerPoint, we can create, view and present slideshow that combine text, shape, picture, graphs, animation, chart and videos, etc. You can make your presentation more interesting by inserting sound and video in the slides. You can further enliven your presentation by adding motion to the text and objects on the slide. PowerPoint also lets you apply various transition effects to the slide. All these features help in keeping the audience engaged to the presentation. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना है कि PowerPoint 2016 जो है वो आपका ग्राफिकल एंड विजुअल एप्लीकेशन है जो आपको आपकी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है. तो इसमें आप वीडियोस भी डाल सकते हो, ऑडियोस भी डाल सकते हो, एनिमेशन वगैरह भी डाल सकते हो ताकि आपकी जो स्लाइड्स हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे. Animating slide objects. Animations are special effects that are added to text or image in a presentation. PowerPoint offers animation effects that can be applied on each slide object. These animations can be seen during the slideshow. There are 4 categories of animation effects. तो पहले हम बात करेंगे एनिमेशन स्लाइड्स इफेक्ट्स के बारे में कि कैसे आप इसको डालकर अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो. जैसे आपने बहुत सारी कार्टून मूवीज़ देखी होंगे, उसमें आपने कार्टून्स देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, वो एनिमेशन ही होते हैं. कई जगह पे आपने देखा होगा, आपने लेटर्स को नाचते हुए देखा होगा या मूव करते हुए देखा होगा, तो वो भी एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू ही किया जाता है. Entrance. This control how the object enters the slide. For example, with the bounce animation, the object will drop onto the slide and then bounce several times. तो एंट्रेंस होता है आपके जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो भी लेटर है, टेक्स्ट है, वो कैसे आपकी स्लाइड में एंटर करेगा. अगर आप उसको बोलोगे कि ये बाउंस करके आएगा तो वो बाउंस करके ही आएगा और वो बाउंस करता रहेगा जब तक आप उसका इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं करेंगे. Emphasize: these animations occur while the object is on the slide, often triggered by a mouse click. For example, you can set an object to spin when you click the mouse. अब emphasize का मतलब होता है कि आप इन animations को अपनी एक क्लिक के थ्रू इनको आप मूव करा सकते हो या इनको आप आगे चला सकते हो. अगर आप बोलोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पिन करेगा, तो जब जब आप अपने माउस पे क्लिक करोगे वो स्पिन करेगा. Exit. This control how the object exits the slide. For example, with the fade animation, the object will simply fade away. अब exit का मतलब आप समझते हो किसी चीज़ का निकलना. तो आपका जो एनिमेशन है वो आपकी स्लाइड से कैसे निकलेगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हो. Motion paths. These are similar to emphasize effects except the object moves within the slide along a predetermined path like a circle. To apply an animation to an object, select the text or object you want to animate. On the animation tab, click the more drop down arrow in the animation group.
A drop-down menu of animation effects will appear. Select the desired effect. The effect will apply to the object. The object will have a small number next to it to show that it has an animation. In the slide pane, a star symbol also will appear next to the slide. At the bottom of the menu, you can access additional effects. तो अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे मोशन पाथ को अप्लाई करते हो। मोशन पाथ होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस मोशन में मूव करेगा, कैसे उसका मोशन वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपके इफेक्ट्स होते हैं, इन इफेक्ट्स में से आप इनको चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं। फिर आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पे, ताकि आपको एनिमेशन ग्रुप में और अच्छे इफेक्ट और अच्छे स्टाइल देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस मेन्यू में आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे, वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसी इफेक्ट के अनुसार उसमें वर्क करेगा, चलेगा, मूव करेगा, एक्सेट्रा। Now next is effect options. Some effects will have options you can change. For example, with the fly in effect, you can control which direction the object comes from. These options can be accessed from the effect options command in the animation group. तो आपका इफेक्ट ऑप्शन आपको बताता है कि आप अलग अलग इफेक्ट्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो। तो ये आपको इफेक्ट ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन ग्रुप में। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, विच बटन विल यू क्लिक टू ऐड मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बताना है आप कौन से बटन को क्लिक करेंगे मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। Now to remove an animation, select the small number located next to the animated object. Press the delete key, the animation will be deleted. अब अगर आपको अपना एनिमेशन हटाना है, रिमूव करना है, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के पास एक छोटा सा नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में डिलीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो एनिमेशन वहाँ से हट जाएगा। Now preview animations. Any animation effects you have applied will show up when you play the slideshow. However, you can also quickly preview the animations for the current slide without viewing the slideshow. Navigate the slide you want to preview from the animations tab. Click the preview command. The animations for the current slide will play. अब आपको अपना एनिमेशन प्रीव्यू करना है, आपने सारे इफेक्ट्स डाल दिए। अब क्या होता है कि स्लाइड शो में आपको देखना है कि मेरा जो एनिमेशन है वो कैसे लगेगा, तो इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। आप नेविगेट करेंगे स्लाइड को जिसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, उसके बाद आप एनिमेशन टैब में से क्लिक करेंगे प्रीव्यू कमांड को, तो आपका जो एनिमेशन है वो आपकी करंट स्लाइड में प्ले हो जाएगा। नाउ स्लाइड ट्रांजिशन. If you have ever seen a PowerPoint presentation that had special effects between each slide, you have seen a slide transition. A transition can be as simple as fading to the next slide or as flashy as an eye-catching effect. PowerPoint makes it easy to apply transitions to some or all of your slides, giving your presentation a polished, professional look. Thus, transitions are the visual movements that we see when one slide change into another slide during a slideshow. This makes the slide look animated. अब ट्रांजिशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस भी बच्चों एनिमेशन की तरह होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक स्लाइड को कुछ और तरीके से दिखा सकते हैं, दूसरी स्लाइड में आप कुछ और ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो ये आपकी स्लाइड्स को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसमें आप इनका एंट्री एग्जिट सब डिसाइड कर सकते हैं। We can apply a transition effect to a single slide or all the slides using given steps. अब हम steps के थ्रू जान लेते हैं कि कैसे आप slides में अपने transition effects को डालते हैं। Single में भी डाल सकते हैं और multiple slides में भी डाल सकते हैं। Step 1, select the slide. Step 2, on the transition tab, in the transition to this slide group, click on a transition to apply to the selected slide. By default, none is applied to each slide. Step 3, click the more drop-down arrow to display all the transition. There are 3 categories of transitions to choose from. Subtitle, light transitions, exciting, strong transitions, dynamic content, strong transition that affect only text or images. Now step 4, click a transition to apply to the selected slide. This will automatically preview the transition.
You can use the apply to all command in the timing group to apply the same transition to all the slides in your presentation. Keep in mind that this will modify any other transition you have applied. Step 5, you can modify the speed at which the slide moves. Change the duration from the default 2.00 seconds to 1.75 seconds using the duration spin box in the timing group. Step 6, from the timing group, use one or more of the following options as per your requirement. If you want a sound to play at the time of transition, click the down arrow next to the sound and select the desired sound from the drop-down list that appears. Specify the time for the transition to complete in the duration box. In the advanced slide section, specify when to transit from one slide to another during the slideshow. Select the on mouse click checkbox if you want the current slide to remain on screen until the user clicks the mouse or presses a key on the keyboard. Select the after checkbox and specify the time in the box beside the checkbox if you want the next slide to appear automatically after the specified time. Click apply to all button if you want to add this transition to all slides in the presentation. Step 7, click the preview button in the preview group on the transition tab to play transition on the slide. Step 8, to modify the transition effect, you can quickly customize the look of a transition by changing its direction. Select the slide with the transition you want to modify. Click the effect option command and choose the desired option. These options will vary depending on the selected transition. The transition will be modified and a preview of the transition will appear. Step 9, to remove a transition, select the slide with the transition you want to remove. On the transition tab in the transition to this slide group, click none. The transition will be removed. To remove transitions from all slides, apply the none transition to a slide, then click the apply to all command. तो आज हम जानते हैं ट्रांजिशन कैसे आप अप्लाई करते हैं अपनी स्लाइड में और कैसे आप उसे रिमूव करते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं. आपको सबसे पहले वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है. देन आप जाएंगे ट्रांजिशन टैब पे इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस ट्रांजिशन पे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नन हुआ होता है. अब जैसे ही आप ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो वो उसमें अप्लाई हो जाएगी. अगर आप और ट्रांजिशन चाहते हैं तो आपको मोर पे जाना पड़ेगा इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में. इसके बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जैसे कि सबटल, एक्साइटिंग, डायनामिक, कंटेंट एक्सेट्रा. तो ये होते हैं आपके लाइट ट्रांजिशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन और वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए. इसके बाद आप क्लिक करेंगे ट्रांजिशन पे उसको अप्लाई करने के लिए सेलेक्टेड स्लाइड पे. आप इसको अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हो. अगर आप उसी स्लाइड पे चाहते हो तो उसी स्लाइड पे होगा. अगर आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो आपकी सारी स्लाइड्स में वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी. इसके बाद आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी स्पीड को कि कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड्स के लिए आपकी स्लाइड पे रहेगी. जैसे कि 2 सेकंड्स के लिए, 1.75 सेकंड्स के लिए इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इसके ड्यूरेशन ऑफ टाइम को. फ्रॉम द टाइम ग्रुप आप यूज़ कर सकते हैं वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाए हुए हैं. आप यहाँ पे साउंड को भी अप्लाई कर सकते हैं. साउंड का जो टाइमिंग है उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वो साउंड वहाँ पे प्ले होगा. एडवांस स्लाइड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपका जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कितने मिनट के लिए जाएगा या वो कैसे जाएगा. वन क्लिक पे जाएगा या आपका स्लाइड अपने आप चला जाएगा. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, माउस क्लिक पे अपनी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं. तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि या वो अपने आप जाए या फिर आप माउस क्लिक पे उसे डिसाइड करें. इसको भी आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, चाहे उसी स्लाइड पे अगर आपको करना है या फिर आपको सारी स्लाइड्स में क्लिक करके ही आपको दूसरी स्लाइड पे पहुंचना है तो ये आप कर सकते हैं. फिर आप प्रीव्यू पे जाएंगे ताकि आप अपनी पूरी स्लाइड्स का एक प्रीव्यू ले लें कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आपकी स्लाइड पे जो कंटेंट है वो अच्छी जगह पे, सही जगह पे है या नहीं, ट्रांजिशन उसमें सही से हुआ है या नहीं. आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, आप इनको क्विकली कस्टमाइज़ कर सकते हैं. इनके इफेक्ट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. जब आपकी ट्रांजिशन मॉडिफाइड हो जाएगी तो उसको भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं.
इसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांजिशन को रिमूव कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रांजिशन है और जिसको आप हटाना चाहते हैं। तो आप फिर से ट्रांजिशन टैब पे जाएंगे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक नन कर देंगे तो आपकी जो स्लाइड में जो ट्रांजिशन था वो हट जाएगा। और अगर आप सारी स्लाइड्स में से इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई टू ऑल कमांड पे क्लिक करके भी हटा सकते हैं। Now you should know while adding animation and transition, it is recommended not to use too many effects in a single presentation as it may divert the attention of the audience. तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप अपने स्लाइड में कोई भी एनिमेशन इफेक्ट को आप डालते हैं तो आप कोशिश करो कि कम से कम डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा एनिमेशन डाल देंगे तो ये आपकी ऑडियंस का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर देगा। थिंक एंड शेयर, इज देयर एनी ट्रांजिशन विद नो इफेक्ट अवेलेबल। तो आपको बताना है कि क्या पीपीटी में, आपका प्रेजेंटेशन में कोई ऐसी ट्रांजिशन है जो किसी भी इफेक्ट के साथ अवेलेबल नहीं है। Now inserting audio clips, music or sound effects can add a completely new dimension to a presentation. PowerPoint allows you to add audio to your presentation. Sound files can be added from the files stored in your computer or a storage device. You can even record your own narration or comments and then edit the audio to customize it for your presentation. आप अपनी एनिमेशन में, आप अपनी जो स्लाइड है उसमें आप ऑडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो एनिमेशन प्ले हो रहा था, साउंड प्ले हो रहा है, तो वो खाली नहीं जाता, बहुत ज़्यादा वो अनइंटरेस्टिंग नहीं लगता। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसमें ऑडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एडिंग ऑडियो फ्रॉम अ फाइल, कैसे आप ऑडियो डाल सकते हैं किसी फाइल में से। टू ऐड साउंड टू द स्लाइड फ्रॉम अ फाइल, फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1, select the slide where you want to add sound. Step 2, select the Insert tab and click on the audio drop-down arrow in the media group. Choose the audio on my PC option from the menu. Step 3, the Insert audio dialog box will appear. Locate and select the desired audio file, then click Insert. The audio file will be added to the slide indicated by a speaker icon on the slide. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस स्लाइड को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है जिस पे आप साउंड डालना चाहते हैं। आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन आप क्लिक करेंगे ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो पे, इसमें भी आप मीडिया ग्रुप में जाएंगे, देन आप चूज़ करेंगे ऑडियो ऑन माय पीसी, क्योंकि आपको पीसी से ऑडियो लेना है। इसके बाद आप इंसर्ट करेंगे, ऑडियो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन आपको लोकेट करना है और सेलेक्ट करना है डिजायर्ड ऑडियो फाइल को। जो भी आप गाना डालना चाहते हैं, कोई भी ऑडियो डालना चाहते हैं, अपना ही कोई साउंड डालना चाहते हैं, अपनी कोई वॉइस डालना चाहते हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। फिर आप देखेंगे कि जो ऑडियो फाइल है वो आपकी स्लाइड पे क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी या उस पर अप्लाई हो जाएगी। Now recording your own audio. Sometimes you may want to record audio directly into a presentation. For example, you might want the presentation to include narration. To record your voice, make sure you have a microphone connected to your computer. To record audio, follow the given steps. Step 1, from the Insert tab, click the audio drop down arrow, then select Record Audio. Step 2, record sound, dialog box appear. Type a name for the audio recording if you want. Step 3, click the record button to start recording. Step 4, when you are finished recording, click the stop button. Step 5, to preview your recording, click the play button. Step 6, when you are done, click OK. The audio file will be inserted into the slide. Step 7, the recorded sound files have the extension as .wav. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्लाइड में हमारे नरेशन की ज़रूरत होती है। हम कोई वीडियो डालते हैं, उसमें हमारी वॉइस चाहिए होती है, हमारा नरेशन चाहिए होता है, ताकि हम बता सकें कि ये चीज़ जो है वो किस चीज़ के ऊपर हमने वीडियो बनाया है या स्लाइड किस चीज़ के ऊपर है। तो आपको वहाँ पे अपने खुद का रिकॉर्डेड ऑडियो डालना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। ठीक है, अब स्टेप्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। आपको इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद आप ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देन रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो ऑडियो है उसका नाम देना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड बटन को ताकि आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकें। जब आप बोलना
ख़त्म हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे। फिर प्रीव्यू करने के लिए, अपनी आवाज़ सुनने के लिए आप क्लिक करेंगे प्ले बटन पे, ठीक है। जब वो आप ओके कर लेंगे तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप इंसर्ट करेंगे अपनी उस ऑडियो को अपनी स्लाइड पे। Think and share. Do you think background music in a presentation catches viewers' attention? If yes, how? तो जब आप बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हो तो वो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसका अटेंशन अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप सिंपल अपना वीडियो चला रहे हो, उसमें कोई साउंड नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो अगर आप साउंड डालते हो तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। नाउ इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स. Understanding becomes very easy when something is explained using a video. We can also insert videos into the presentation. Video clips adds liveliness to the presentation. These features enables the audience to engage efficiently. PowerPoint 2016 allows you to insert video in two ways: online video and video on my PC. Follow the given steps to insert a video clip onto your slide. Step 1, click on the insert tab in the media group. Click on the video drop down and select video on my PC option. Step 2, the insert video dialog box appears, and navigate to the location and select the desired video, then click on insert. Next step is step 3, the video will be added to the slide. Once the video is inserted, you can change video shape, border effect, styles and much more in the video format option. Step 4, click on the play button below to the video clip. Step 5, to delete a video, select it and then press either the backspace or delete key. अब आप अपने स्लाइड में वीडियोस भी डाल सकते हो, ठीक है। वीडियोस क्या होते हैं, आपकी स्लाइड है उसको ये इफेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल अपने टेक्स्ट को दिखा रहे हो, उसमें कोई वीडियो नहीं है, खाली पिक्चर्स हैं, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। अगर आप वीडियो डालते हो तो आप अपने बात को, अपने थॉट को आप अपने व्यूअर्स को और अच्छे से समझा पाते हो। तो आपकी प्रेजेंटेशन में वीडियो जो है दो तरीके से डलता है। एक होता है आपका ऑनलाइन वीडियो जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, दूसरा होता है आपका वीडियो ऑन माई पीसी। अगर आपके पास पहले से कोई वीडियो है आपके पीसी में तो वो आप डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, देन आप मीडिया ग्रुप पे जाएंगे, देन आप क्लिक करेंगे वीडियो ड्रॉप डाउन एरो पे। इसमें आपको वीडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन पे जाना है, उसको सेलेक्ट करना है, देन आप इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जो आपसे डिफरेंट वीडियोस पूछेगा। तो आपको नेविगेट करना है कि आपको कौन सा वीडियो वहाँ पे चाहिए। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। इसके बाद आपका जो वीडियो है ये आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगा। जब आपका वीडियो ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो आप इसकी वीडियो की शेप, इफेक्ट, बॉर्डर इफेक्ट, स्टाइल वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे बिलो द वीडियो क्लिप। अगर आपको वीडियो डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस और डिलीट की, तो आपका वीडियो वहाँ से हट जाएगा। Think and share. Discuss with your partner how to add a video clip in your presentation that has been shot with your digital camera. अब आप अपने पार्टनर से या किसी एल्डर से पूछ सकते हैं कि जो आपने वीडियो अपने कैमरा से बनाया है उसको आप अपनी स्लाइड में कैसे डाल सकते हैं। Now creating a photo album. Photo album is a feature that allows you to club your personal and business photographs together to use in a presentation. However, you cannot insert online pictures directly in the photo album. You will have to download pictures from your online storage and put them in a folder on your hard drive. This way you can access all the images that you want to include in your presentation. अब आप फोटो एल्बम भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। जो पीपीटी आपका पावर पॉइंट है उसके थ्रू आप फोटो एल्बम भी बना सकते हैं। आपके पास जो आपके पीसी में जो फोटोज़ हैं उनका तो आप बना ही सकते हैं, ऑनलाइन भी आप फोटो डाउनलोड करके उनका बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फोल्डर में आपको सारी पिक्चर्स सेव करनी होगी, फिर उसके बाद आप उसका एल्बम बना सकते हैं। Follow the given steps to create a photo album for your presentation. अब हम step by step समझ लेते हैं। Step 1, click on the insert tab in the images group. Click on the photo album drop down menu. Step 2, select a new photo album option. Step 3, the photo album dialog box appears. In the insert picture from section, choose the file disk tab to select pictures from your computer. Step 4, the insert new picture dialog box appears. Browse and navigate to the desired location to select as many as you want.
To make your photo album, under the pictures in album box, the pictures that you select will be added. Step 5, now go to the album layout section and select picture layout, frame, shape and theme accordingly. Step 6, click on create button. Your photo album presentation is ready. A separate presentation will be created for the photo album. By default, it will include a title page and one picture per slide. ठीक है, तो स्टेप 1 है आपका, आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे, उसके बाद इमेजेस ग्रुप में आप क्लिक करेंगे फोटो एल्बम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे न्यू फोटो एल्बम, अगर आपको न्यू फोटो एल्बम डालनी है। उसके बाद फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम सेक्शन आपको चूज़ करना है, फिर आपको फाइल डिस्क चूज़ करनी है जहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ आपने सेव की होगी आपके कंप्यूटर पे। उसके बाद आप इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, आप ब्राउज़ करेंगे, जो भी पिक्चर आपको डालनी है अपनी एल्बम में आप उसको नेविगेट करेंगे। उसके बाद अंडर द पिक्चर इन एल्बम बॉक्स पिक्चर जो है वो ऐड हो जाएंगी जो भी आपने वहाँ पे सेलेक्ट की होंगी। देन आप जाएंगे एल्बम लेआउट सेक्शन पे और आप सेलेक्ट करेंगे पिक्चर लेआउट को, जो भी आप उसको फ्रेम देना चाहते हैं, लेआउट देना चाहते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो एल्बम जो है वो प्रेजेंटेशन में रेडी हो जाएगी। एक सेपरेट प्रेजेंटेशन भी क्रिएट हो जाएगी आपकी फ़ोटो एल्बम के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके टाइटल पेज और वन पिक्चर पर स्लाइड को क्या करेगी, इंक्लूड करेगी। You should know after selecting all the images, you can arrange them in the order of your choice by using the up and down arrows next to the image in the album box. अब कभी हम क्या होता है कहीं जाते हैं तो हमने डे 1 डे 2 इस तरीके से पिक्चर जो है अरेंज की होती है, तो यहाँ पे भी आप अरेंज कर सकते हैं कि ये पिक्चर इससे पहले है, ये इसके बाद है, इस तरीके से। Rehearsing the slideshow. Rehearse timings is a useful feature that helps us to practice presenting the slideshow. Using this feature, we can save the most appropriate timings needed to go through each slide and animation in the presentation during a slideshow. These timings can then be used to run the slideshow automatically for the audience. The steps to set these are as follows. Step 1, select the slideshow tab and locate the setup group. Step 2, click the rehearse timings command. You will be taken to a full screen view of your presentation. Step 3, practice presenting your slideshow. When you are ready to move to the next slide, click the next button on the recording toolbar in the top left corner. Step 4, when you have reached the end of the show, press the escape key to end your slideshow. A dialog box will appear with the total time of your presentation. Step 5. If you are satisfied with your timings, click yes, else do it again. The slide of your presentation will be displayed in the slide shorter view. तो अब हम जान लेते हैं रिहर्स टाइमिंग क्या होता है। रिहर्स द स्लाइड शो क्या होता है। रिहर्स टाइमिंग जो होता है ये यूजफुल फीचर माना जाता है जिसके थ्रू आप अपने स्लाइड शो की जो प्रेजेंटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि ऑडियंस को दिखाने से पहले आप क्या कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपका स्कूल में फंक्शन होता है, आप उसमें पार्ट ले रहे हो, आप कोई डांस वगैरह कर रहे हो, तो आपका रिहर्सल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप स्टेज पे जाए तो आप नर्वस ना हो या आपकी ऑडियंस आपको देखकर हंसे ना। तो उसी प्रकार से आपकी जो स्लाइड शो होती है उसका आप रिहर्सल करते हो। अब यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आप रिहर्स कर सकते हो अपने स्लाइड शो का। आपको सबसे पहले स्लाइड शो टैब पे जाना है, उसको सेलेक्ट करना है, देन आप लोकेट करेंगे सेटअप ग्रुप पे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिहर्स टाइमिंग कमांड पे, ठीक है। फिर आपको एक फुल स्क्रीन व्यू मिल जाएगा आपके प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे आप प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग कर सकते हैं अपने स्लाइड शो की, कि किसे आप आगे रखना चाहते हैं, कौन आगे अच्छा लगेगा, कौन पीछे अच्छा लगेगा, कौन सी वाली स्लाइड पे कौन सी वाली पिक्चर अच्छी लगेगी, टेक्स्ट कहाँ पे अच्छा लगेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जब आप एक स्लाइड से आपको लगेगा कि आप ओके हो गए हो, कन्फर्म हो गए हो, देन आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। इसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब आप रीच करेंगे अपनी एंड स्लाइड पे, उसके बाद आप एस्केप की को प्रेस करेंगे और इससे आप कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप उसमें कस्टमाइज करते रहेंगे। You should know you can text run the show to check the timings by clicking on the slideshow button
और रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू बाय क्लिकिंग ऑन नॉर्मल व्यू बटन। तो आप अपने जो स्लाइड्स की टाइमिंग है उनको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उससे एस्केप भी कर सकते हो। Tricky terms: animation, the art of giving motion to inanimate objects, pictures, and so on. Slide transitions: animation like effects that occur when you move from one slide to the next during a slideshow. Rehearse timings: a feature in PowerPoint that helps you to create a self-running presentation. तो इस चैप्टर में हमने जाना और अच्छे से कि आप अपना पावर पॉइंट जो पीपीटी है वो कैसे बना सकते हो, अपनी आप स्लाइड्स को कैसे अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो ताकि जो व्यूअर है उनको वो अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे और वो अच्छे से उसे देख पाएँ. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.